السلام علیکم میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں بیٹیوں، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی تمام پریشانیاں اور تکالیف سے آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ تو میرے پیارے معزز سامعین سامعات، میرے چینل اسداللہ کو ضرور سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کو دبایا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کام سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسلام کی مدد کرنے میں ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان کی شہادت، اور ابھی پہلی شہادت حضرت ہانی کی ہو گئی۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوفزدہ تھے، اب یہ خبر سن کر تو وہ اور بھی بہت گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالی اور شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی اس جرأت اور دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی تو اس نے مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی جماعت میں تلواریں لے کر نکلے تھے، تمام کے تمام بھاگ گئے، اور حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے۔ اور اب کوفہ کے بازار تھا، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو معصوم بچے تنہا بے کسی تھے عالم میں کھڑے تھے۔ غربت و مسافر تھے، مظلوم بیچارگی تھی۔ عجیب دردناک حالت کا یہ منظر تھا۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ تھے، اور خیر خواہ کوئی نہ تھا۔ کوفہ کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں۔ ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ قدم بڑھتے رہے، خاموش دیواروں کے سائے میں مسافر جا رہا تھا۔ آج تلواروں کے سائے میں کوئی منزل نہ تھی، پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے۔ کبھی اس در پہ آتے تھے، کبھی اس در پہ جاتے تھے، دونوں بچوں کو سینے سے چمٹائے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا، اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شرعی تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شرعی کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شرعی نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، بابا میں مسافر ہوں، ہمارا وطن بہت دور ہے، اور یہاں ہمارا کوئی نہیں ہمدرد نہیں ہے، اور کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج رات کی اپنے پاس رکھ لو، میں کہیں جھاڑیوں میں کہیں رات بسر کر لوں گا، اور
बढ़ते पाँव फटते ही मैं कहीं यहाँ से किसी और जगह चला जाऊँगा। आज रात में हमें आप अपना पनाह में और अपनी पनाह दे दें। आज रात आप पनाह दे दें तो मैं कल क़यामत के रोज़ आपको पनाह दूँगा। हज़रत मुस्लिम की इस दर्दनाक गुफ्तगू से काजी शरीक की आंखों में आंसू आ गए और वो दरवाज़ा खोलकर अर्ज़ की उसने अंदर तशरीफ़ ले आए। मदीना के ये तीनों मुसाफिर काजी शरीक के मकान में दाखिल हो गए। अंदर चिराग जल रहा था। काजी शरीक ने देखा तो पहचान गए और हज़रत मुस्लिम के कदमों में गिर गए। बच्चों को गले लगा लिया और सारी रात इन मेहमानों का पहरा देते रहे। हज़रत मुस्लिम ने फजर की नमाज अदा की और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी तदबीर हो कि हज़रत इमाम हुसैन को कूफा वालों के बेवफाई, अहद शिकनी और दुश्मनी और इब्ने ज़ियाद के जुल्म सितम की इत्तला मिल जाए। मगर अब क्या कर सकते थे। ख़त लिख चुके थे और भेज चुके थे। तीर कमान से निकल चुका था। अब दूध थनों से निकल चुका था। सूरज निकलते ही कूफा के कूचा बाज़ारों में मनादी होने लगी कि मुस्लिम जिस घर से भी पकड़े गए उसके बाल बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। उस घर वालों के हज़रत मुस्लिम ने ये दिल में ये ख़ारिश आवाज़ सुनी तो इस आपको ख्याल आया कि मेरी वजह से ये बूढ़ा मुब्तला मुसीबत क्यों हो जाए। तो बूढ़े को इस मुसीबत में मुब्तला मैंने कर दिया। जोश में आ गए, तलवार म्यान से निकाली और काजी शरीक को फरमाया, बाबा आपकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत अहल बैत का शुक्रिया, मैं इसका बदला क़यामत के दिन अदा करूँगा। और देखो मेरे ये 2 यतीम बच्चे हैं, आपके पास अमानत हैं। अगर कोई वक्त मिले तो इनको मदीना के रास्ते पर डाल देना। ठोकरें खाते गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। इतना कहकर हज़रत मुस्लिम ने नारा तकबीर बुलंद किया और शमशीर हैदरी को हवा में लहराते हुए मैदान में आ गए और ललकारा के आए कूफा के बेवफा लोगों, तुमने मेरे हाथ पर बैत की, मुझे अपना मजहबी पेशवा तस्लीम किया और मैं खुद नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। तुमने मेरे बच्चे तुमने मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ी और अब आपने अपने बुलाए हुए मेहमान के साथ अब तुम क्या कर रहे हो। अपने पीरों और मजहबी पेशवाओं और के खून के प्यासे हो गए हो। जवाब दो, अगर क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे कि मेरे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे, जिसने फरमाया कि मेरी अहले बैत का दुश्मन वो मेरा दुश्मन और मेरे आल से लड़ने वाला मुझसे लड़ने वाला है और मेरी इतरत हक़ व हिदायत का सर चश्मा हूँ। और मगर तुम आज ही अहल बैत के चमन से एक फूल को तोड़ने के दर पे हो। इसी आले मोहम्मद के हुजरे की एक दीवार को गिराना चाहते हो तो इसी इतरत रसूल के बाग की एक शाख को काट रहे हो। बातिल को मगलूब करने के लिए अब भी अगर हक़ का साथ दो तो खुदावंद तआला की रहमत व बख्शिश के दरवाज़े तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, वरना आइंदा आने वाली नस्लें तुम्हारी बेवफाई, अहद शिकनी, वादा खिलाफी, बुज़दिली पर क़यामत तक लानत बरसती रहेगी। हाशमी जवान की इस ईमान अफरोज़ तकरीर ने कूफा में एक आग लगा दी और कूफा वालों के दिल हिला दिए और एक बार फिर हज़ारों तलवारें यजीद की गैर इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ और ख़ानदान नबूवत की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए, हक़ और सदाकत की रखवाली के लिए मैदानों से निकल आई। इब्ने ज़ियाद ने शहर के बड़े बड़े और सरकारदार जो
शहर के बड़े सरदार लोगों में उनको बुला कर लालच का एक जाल बिछा दिया था और वो तमाम उमरा और वर्षा को अपने हाथ में ले चुका था। इन्होंने अपने अपने असर रसूख से अपने कबीले के लोगों को हज़रत मुस्लिम का साथ न देने दिया और उन्हें आमादा कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो फिर साथ छोड़ गए और हज़रत मुस्लिम फिर तन्हा रह गए और फिर हर तरफ से मायूसी ना उम्मीदी होकर भूखे प्यासे थके टूटे एक तरफ को चल दिए। कोफा के बाज़ारों और गलियों से गुजरते हुए देखा तो एक तरफ एक बूढ़ी औरत जिसका नाम तुआ था, खौफ के से मारी हुई सहमी हुई मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, अम्मा जान, माई मैं प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी पिला दे, क़यामत के रोज़ हौज़े कौसर का जाम पिलाऊँगा, तेरी शफाअत करूँगा और जन्नत में अपने साथ ले जाऊँगा। उसका नाम तुआ था। तुआ ने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं नवासा रसूल हूँ, इमाम हुसैन का भाई हूँ, कोफा वालों का बुलाया हुआ मेहमान हूँ, मदीना का मुसाफिर हूँ, मेरा नाम मुस्लिम है। मुस्लिम का नाम सुना तो तुआ कुर्बान हो गई, खाक पाक को चूमा, सिद्दा शुक्र अदा किया कि कहाँ मेरा गरीब खाना और कहाँ ख़ानदाने नबुवत का शहज़ादा। घर ले गई और ख़िदमत में लग गई। आधी रात हुई तो तुआ का लड़का इब्ने ज़ियाद के दरबार से घर आया। बूढ़ी माँ ने बेटे को खुशी से बताया कि बेटा, सोई हुई किस्मत जाग उठी, हमारे मुकद्दर का सितारा चमक उठा कि हज़रत मुस्लिम हमारे घर रौनक आफरोज़ हैं। सारी रात अपने मेहमान पर माँ और बेटा दोनों खुश थे, मगर दोनों की खुशियाँ मुख्तलिफ थीं। माँ अपनी निजात का ज़रिया समझती थी और बेटा हज़रत मुस्लिम को गिरफ़्तार करा के इब्ने ज़ियाद से इनाम पाने का ख्वाहिशमंद था। पैसा का लालची था, पैसे की लालची, यही पैसा सब कुछ करवा रहा है। आज भी यही पैसा सब कुछ करवा रहा है, ईमान लुटवा रहा है। कल करबला के मैदान में यही पैसा चला, आज भी ईमान के अंदर, और आज भी ये ऐश और इशरत की पट्टी बंधी हुई है, ये पैसा चल रहा है। ऐश हो, इशरत हो, गुर्बत जाए, चाहे ईमान चला जाए तो गुर्बत भी ना रहे और ईमान जाता है तो जाए। और हमारा ऐश इशरत और हमारा ये जो है खाना पीना, ऐश, बाहर घूमना फिरना, ये बहुत डीम डाल, ये आर्जी दुनिया को देख रहे हैं आज के मुसलमान भी। यही आज भी हो रहा है। ईमान की कोई परवाह नहीं है। उस वक्त भी ईमान की परवाह न थी। जनती माँ के जहन्मी बेटे ने ऐसा ही किया। पिछली रात घर से निकला, इब्ने ज़ियाद को हज़रत मुस्लिम का पता दे दिया।